And first of all, thank you so much for joining in this mission and taking out your valuable time on this afternoon and joining us here. Thank you, thank you, thank you. Okay, friends, before I start off, I just want to know from which all places you have connected us today, because we have received an overwhelming response. There are over, hundreds of people who have registered. So just want to know from which all places you have connected. Okay, I can see people join from Mumbai, Patna. Okay, good evening, Lata ma'am. Welcome, Bangalore. Friends, we want this to be an interactive session, so please interact. Okay, Mumbai. Jamshedpur, wow, that's my hometown. Thank you for connecting. Okay. Mumbai, okay, this is my current place. Jamshedpur, hi Namrata. Thank you for joining. Okay, I think there are few people who's waiting in the waiting room. Madhavan sir, is there anybody waiting in the waiting room? Because people are messaging me that they are not right now, no, I have admitted all the participants. I have admitted all the participants. Nobody is there in the waiting room. Not audible? Are you able to hear me, Rekha? I think I'm very much loud and clear. Can you just confirm? Rekha, are you able to hear me? Not audible. Rekha, are you able to hear me? You are audible. Thank you, Raju sir. Thank you for joining. We are able to hear both of you. Okay, thank you. Welcome, Mr. Saurav Bajaj. Okay. Thank you so much, dear friends. Thank you for connecting. We'll wait for just a couple of minutes so that let other people join us. So till that time, let's have some chat, okay? So are you all excited? Are you all excited? Oh, yes. Okay. Good. Good evening, Ashokji. Thank you for joining in. Hello, good evening, ma'am. To see people, at this time taking out and open to learn something. Just to brief you about this mission Power of 10, we would like to contribute from our end for the people, because at this time of difficulties, everybody is going through some or the other kind of difficulties. Financial crisis, job loss, salary cut, the small businesses are closing down. So we thought of, doing something for the society, and what could be the better way than this, sitting at home and, adding value to people's life. We thought this is the best, and if we can do for just one person also, that is going to be our biggest success in our life. So thank you, friends. Thank you, Shriveni ma'am, for joining in. Thank you. And I welcome you all once again. And I really appreciate your commitment. For the next 10 days, we all are going to be here together. Of course, might be different timings, may not be the same timing, considering and keeping it in mind that a lot of people are working from home. So we might need to, reschedule the timings in between these 10 days. We'll keep informing. Stay in touch with us in the group.
because all the updates and all the informations will be given through the group only. Thank you so much. Okay, I hope we are good to start now. So friends, before we start the session, I'm here to introduce today's trainer, and he is going to be with us for the next 10 days. Okay. He is none other than, you all know him very well, Mr. Amit Kumar Mahato, who's an author, blogger, corporate trainer, motivational speaker, life and wealth coach. He believes that every individual has tremendous hidden potential, and through proper training and coaching, one can be guided to achieve all his personal, professional, and financial goals. Mr. Amit Kumar Mahato is a chartered wealth manager from American Academy of Financial Management and a certified master trainer from IITD Mumbai. With over 18 years of experience in financial sector, he's a self-believer and believes training is transformation, and training is a continuous journey to achieve success. I welcome Mr. Amit, you're there? Yes. Hey friends, good afternoon. Am I audible? Thank you so much, Rekha, for the wonderful introduction. I want confirmation from your end, you people, if I am audible. Fantastic. Thank you so much, Sagar sir. Thank you, Lata ma'am. Thank you, Archita, KG. Fantastic. Thank you. Okay, friends, let me just tell you, I don't know आप लोग कितना excited हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा excited हूँ. And yeah, thank you so much आप सबको तहे दिल से. ओ कैप्टन सुरेश, वेलकम कि आप सब लोगों ने आज का सेशन के लिए टाइम निकाला और आने वाले 10 दिन के लिए कमिटेड हैं आप लोग नए लर्निंग्स के लिए. ये दिखाता है कि आप लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे, जहां पे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. वहां पे मुझे ये लगा कि ट्रेनिंग के जरिए मैं लोगों को अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं और उनको कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं, सो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. तो उसी मुहिम के तहत ये हमने 10 सेशन का ये सीरीज स्टार्ट किया है और एक बार फिर से मैं आप सबों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं और थैंक यू बोलना चाहता हूं. सो फ्रेंड्स, आई थिंक we have people from across India. People are from south, people are from west, north, east, right? So I welcome all of you. सेशन को मैं सेशन में आऊं, आई थिंक अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. सो मैं पूछना चाहूंगा पहले तो आप लोगों में से कितने लोगों को स्टोरीज पसंद है? स्टोरीज हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं स्टोरीज. मी प्रवीण सागर जी बोलते हैं, फैंटास्टिक. मीनाक्षी, थैंक यू. क्या बात है. सो आई लव स्टोरी टेलिंग. सो आई विल स्टार्ट our day with a story. Hope it's okay to all of you. Okay, great. So friends, ऐसा है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है रामेश्वर. लॉकडाउन से पहले वो कोलकाता घूमने गया था अपने फैमिली के साथ और कोलकाता का एक फेमस जगह है. अच्छा, बाय द वे, हिंदी इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू ना, और आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, और इंग्लिश विल बी ओके फॉर ऑल ऑफ यू? English, Praveen sir is saying English. Okay, fantastic. I'll do that. English, sir. Okay. I'll try to, convey in both the language. Hope that would be okay. Lata ma'am is saying use both. Fantastic. Okay. So, रामेश्वर कोलकाता गया था
और कोलकाता का एक फेमस जगह है विक्टोरिया। विक्टोरिया में अगेन जो फेमस, सबसे ज्यादा फेमस है वो है वहां का तांगा। उसके फैमिली में उसका एक छोटा लड़का भी रहता है 9 साल का। वो क्या करता है, तांगा वाला को जैसे ही देखता है रामेश्वर को बोलता है, पापा मुझे तांगे में बैठना है। रामेश्वर बोलता है ओके फाइन, क्या दिक्कत है, लेट्स गो फॉर अ राइड, तांगा राइड। वो लोग तांगा में बैठते हैं और जैसे ही तांगा आगे चलता है, थोड़े दूर जाने के बाद तांगा रुक जाता है, घोड़ा रुक जाता है। तांगा वाला क्या करता है, नीचे उतरता है और घोड़े के सामने जाके कुछ तो डांस जैसे एक्टिविटी करता है और उसके बाद फिर से वो वापस आता है और घोड़ा तांगा फिर चलता है। फिर थोड़ी देर बाद जाता है, फिर तांगा रुक जाता है, फिर वो नीचे उतरता है, घोड़े के सामने अगेन कुछ डांस जैसा एक्टिविटी करता है, उसके बाद फिर ऊपर आता है, फिर तांगा चलता है। ये कुछ 4-5 बार रिपीट हो चुका और रामेश्वर और फैमिली जो है तांगा एंजॉय करने के लिए चढ़े थे, बेसिकली वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे फ्रेंड। रामेश्वर को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तांगे वाले ये कर क्या रहे हो, ये तो मजा नहीं आ रहा, हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं तांगे को, और यहाँ पे यह है कि बार बार रुक रहा। तो बोलता है कि यस, बोलता है कि साहब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है पता है आपको, ये जो घोड़ा है ये बराती वाला घोड़ा है और इसके सामने जब तक नाचते नहीं ये आगे बढ़ता नहीं। सो ये फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा माइंड जो है ना इस बराती वाले घोड़े के जैसा है, जब तक इसके आगे नाचते नहीं घोड़ा आगे बढ़ता नहीं। ठीक उसी तरीके से जब तक हमारे माइंड को ओपन करते नहीं इसके अंदर कुछ जाता नहीं। तो ट्रेनिंग की जब बात होती है, अगेन इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते हैं, मुझे सिर्फ नाम सुने या आगे शायद फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो सभी लोग और जो लोग भी आए हुए हैं, सबसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है माइंड को ओपन कर लें, क्योंकि अगले 10 दिनों तक हम लोग जुड़े रहने वाले हैं। और इन 10 दिनों में अगर क्लोज माइंड के साथ बैठेंगे, या फिर एक होता है ना, एक नया इंसान को सुनने गए हैं, चलो ना देखते हैं क्या बोलता है नहीं करता है। कई बार हम लोग क्या होता है ना, ऑब्जर्व करने के लिए चले जाते हैं, जज करने के लिए चले जाते हैं। अगर ऐसा करते हैं कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए। अब आ गए हैं तो इट्स बेटर ना कि माइंड को ओपन करें और जो चीज हम बताएं उसको सीखें। I hope message is very much loud and clear, friends. So I request, if you people have opened your mind, then please type open, open-minded, or whatever you would like to. Thank you, Piyush. Thank you, Sagar ji. Thank you. फ्रेंड्स, रामेश्वर जो है ना मेरे कैरेक्टर का, मेरे स्टोरीज का फेवरेट कैरेक्टर है। सो एवरी स्टोरीज में मैं रामेश्वर को ले आता हूँ। आई थिंक लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, 37 लोग आ चुके हैं। सो लेट्स सी, एंड आई डोंट नो, सम पीपल हैव मैसेज दैट दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन, कुछ तो टेक्निकल इशू है, बट देन इट्स ओके, उनको हम अपना रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे बाद में। सो एक और स्टोरी शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। अगेन माय फ्रेंड रामेश्वर, उसका बिजनेस जो है ना लॉज का है, वो होटल लॉज जो होता है ना, वहां पे लोग आते हैं, ठहरते हैं, जाते हैं। सो उसका एक लॉज होता है और वहां पे एक फाइन डे मॉर्निंग वो अपने काउंटर में बैठे रहता है, एक अंग्रेज बाहर से आता है। अंग्रेज क्या करता है, आता है, बोलता है कि मुझे रूम चाहिए, दिखाओ, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है। रामेश्वर उसको बोलता है एक काम करो, आप जो है मुझे 2000 का नोट दो, आप रूम देखो, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो अपना पैसा लेके चल जाना। रामेश्वर 2000 का नोट देता है और रामेश्वर को 2000 का नोट अंग्रेज देता है और उसका असिस्टेंट उसको रूम दिखाने के लिए लेके जाता है। बाय द टाइम वो लौट के आए, रामेश्वर क्या करता है, वो 2000 का नोट बाहर में वो चाय वाला रहता है, उसके पास उसका उधारी रहता है, उसको 2000 का नोट दे देता है। चाय वाला क्या करता है, वो पानी वाले से 2000 का उधारी लिए रहता है, पानी वाले को 2000 का नोट दे देता है। एंड पानी वाला क्या करता है, सब्जी वाले से 2000 का उधारी लिए रहता है, उसको 2000 का नोट दे देता है। एंड फाइनली सब्जी वाला रामेश्वर से 2000 लिए रहता है, रामेश्वर को चुका देता है। सो 2000 का नोट एक था, अंग्रेज ने रामेश्वर को दिया था और वापस जो है वो पैसा
वो 2000 का नोट रामेश्वर के पास आ जाता है एंड पूरा साइकिल कंप्लीट आता है। बाद में अंग्रेज आता है, बोलता है मुझे रूम पसंद नहीं आया। रामेश्वर उसको उसका पैसा लौटा देता है और चले जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से क्या क्या मैसेज मिलता है आपको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रामेश्वर ही इज ए फास्ट एक्शन टेकर, फुल्ली एनर्जेटिक। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं सब एनर्जी है। हम हैं, आप हैं, आज जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम, हर चीज एनर्जी है। मनी सर्कुलेशन हुआ, करेक्ट। और क्या हुआ? बेसिकली मनी सर्कुलेशन और मनी भी एक एनर्जी है। एनर्जी की शेयरिंग हुई। अगर वो पैसा लेता और अपने काउंटर में रख देता तो ये आगे ही नहीं बढ़ता। और उस 1000 का नोट से सारों का उधार भी चुकता हो गया और जिसका पास पैसा था वो पैसा उसको भी चला गया। सो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। व्हाट आई वांट, अगले 10 दिनों तक हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहने वाले हैं। सो आई वांट पूरे 10 दिन तक, चाहे सेशन 1 घंटा का हो, 2 घंटा का, जो भी हो, पूरे सेशन तक अपना एनर्जी बनाए रखिएगा। सो जब कभी भी कुछ लगेगा कि ये सेशन का एक आहा मोमेंट है, सो क्लैपिंग से या फिर हाईफाई से या किसी भी तरीके से चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एंड अभी के लिए अगर आप सोए हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए। आपके आसपास कोई अगर है तो उसको हाईफाई दीजिए, बोलिए यू आर ऑसम। अगर आपके साथ कोई है, 2 जन है, 10-5 दीजिए, बोलिए वी आर ऑसम। अगर कोई आपके पास नहीं है तो प्लीज अपने बैक को टैप कीजिए, बोलिए यस आई एम ऑसम। मेरी वॉइस सब लोगों को क्लियर आ रही है? किसी तरह का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? मुझे मैसेज मिला। ऑल ओके सर। ऑल ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज अनम्यूट ना करें, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू। ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर हम मैं अगर आपको पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। How many of you want happiness in your life? Fantastic, fantastic. यही एनर्जी मुझे चाहिए था। Fantastic. How many of you want both the things in your life? Raise your both the hands, or you can reply in the chat box. Me. Fantastic, friends. Fantastic. So happiness, success की अगर हम बात करें, शायद आप लोग अपने आप को सक्सेसफुल मानते भी होंगे। एक लेवल तक आपने सक्सेस टेस्ट भी करा होगा, एक लाइफ में हैप्पीनेस भी देखा होगा, सैडनेस भी देखा होगा। बट हैप्पीनेस एंड रियल सक्सेस की अगर हम बात करें, किसको आप रियल सक्सेस बोलते हैं? पैसा को? आपके पास बहुत सारा पैसा है। ऐसे इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लग्जरी की कमी नहीं है, लेकिन उनका हेल्थ जो है अच्छा नहीं है। बहुत सारे बीमारियों से जूझ रहे हैं। The people in the industry, in this world, they are like wealthy people, wealthy rich people, but they are dealing with health. They are dealing with relationship. They don't have the peace of mind. Do you think they are successful? Of course not, right? Okay, if I'll ask happy people, पिछले कुछ साल पीछे, a few years back, there was a movie, Udta Punjab. How many of you have seen this movie, Udta Punjab? शाहिद कपूर मूवी। उसमें दिखाया गया था पंजाब में कैसे ड्रग इंजेक्ट करते हैं और लोग जो है पड़े रहते हैं। वो ड्रग इंजेक्ट करने से बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, बॉडी रिलीजेज ए हैप्पी हार्मोन एंड इट गिव्स यू प्लेजर। डू यू वांट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस? Of course not, right? Friends, give me a few quick responses. I want all of you to be active throughout the session. Yes, Ashok Gadge is saying I have words. So I'm sure the kind of success or the kind of happiness what I am talking about is something different. So friends, today's session is on life only,
And the topic is, today's topic is wheels of life, friends. Wheels of life. Wheels of fantastic life. So live the life the way you want. Here I'm talking about the fantastic life, जहां पे आप जो चाहते हैं और जैसा चाहते हैं ऐसा लाइफ आप जी रहे हो, हम इसकी बात कर रहे हैं. How does it sound, friends? I'm sure it's very exciting, right? Fantastic life. So whatever you want in your life, that is there. Be it health, be it wealth, relationship, peace of mind, everything. And it's like a complete life that is called fantastic life. So now if I ask you, how many of you want a fantastic life? Please reply in the chat box. I want some quick responses. Thank you. Thank you. Yes, everybody wants the fantastic life. So fantastic life की अगर हम बात करें, so first of all, क्या लगता है वो कौन कौन से चीज होने चाहिए एक फैंटास्टिक लाइफ को लीड करने के लिए? फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा व्हील्स ऑफ लाइफ. सो लाइफ को अगर एक व्हीकल की तरह से हम देखें, सो जिस तरीके से व्हीकल में 4 व्हील्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे लाइफ के व्हीकल ऑफ आवर लाइफ, यू कैन से द लाइफ itself is a vehicle. If we consider it, the first wheel is health. Second one is wealth. Third one is relationship. And fourth one is peace of mind. I'm sure, friends, you all will be agree. आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो गड़बड़ है. हेल्थ सही है लेकिन वेल्थ में फिर गड़बड़ है. वेल्थ अगर सही नहीं रहा तो अगेन कहीं ना कहीं ये गड़बड़ ही रहेगा. Why? Because whatever you want in your life, starting from the basics things or to a luxury things, be it health related issues, be it rasan pani, be it education, anything, or whatever you want, the necessary things in your house, for that wealth is required. Do you think you are facing a problem of health, wealth, you don't have enough money, and somebody got hospitalized from your family, and आप जाके हॉस्पिटल में if you'll say that देखो पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, चीज को समझा करो, I'll give it back to you, बाद में दे देंगे, मैं बहुत ईमानदार इंसान हूं. Do you think hospital will consider you? Same thing, friends. You are very much fine, fit and fine. You are a wealthy person also. But at the same time, the relationship with your spouse or with the parents or with anybody, friends, colleagues, it's not good. Do you think it's okay? Of course not, right? Relationship is equally important. Be it family. Friends, somebody is scratching the screen. I request not to do that because it is disturbing. Not only to me, but to others also. Please listen because topic is interesting, and I'm sure, let me just tell you, there will be few great breakthrough for you. Or I request, if you are not interested, you can quit. I'm so sorry. I may be sounding harsh. Yeah. So relationship. दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको पैसे की कमी नहीं है, फिट एंड फाइन है, लेकिन रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट इन लॉज, फ्रेंड्स, अकेले जी रहे हैं. एंड रीजन क्या होता है? हाल के दिनों में जिस तरीके से देखा गया है, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत इज द बिगेस्ट एग्जांपल. ऑफ कोर्स वहां पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बट उस पे हम नहीं जाते हैं. बट देन एक इंसान हेल्दी था, फिट था, डेली एक्सरसाइज करता था, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं था, करोड़ों रुपया बना चुका था. सो हेल्थ और वेल्थ का कोई टेंशन नहीं था. लेकिन रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे, रहा था, जो कि धीरे धीरे अभी सामने आ रहा. सो फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट आवर रिलेशनशिप इज. And finally, friends, maybe relationship,
health, wealth, even these three are okay, but due to some reasons, you are not having that peace of mind. You know, you may find in your family only, or you know somebody, your near and dear, who is not, you know, in a cool mind, cool headed, or every time he's like इधर से उधर भागते रहता, मतलब समझ में नहीं आता उसका क्या, उसका दिमाग में 10 चीजें चलते रहती है. Do you think even that is okay? So जिस तरीके से एक गाड़ी को बढ़ने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है और चारों पहियों का अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक उसी तरीके से लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए ये 4 पहियों का अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर ये जरूरी नहीं, ये अलाइनमेंट नहीं रहेगा और एक भी पहिया, एक भी व्हील डिसबैलेंस होगा, अलाइन नहीं रहेगा, तो लाइफ एक्चुअली वो हिलता डुलता रहेगा, कभी अप कभी डाउन, एंड दैट्स नॉट अ गुड. सो बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ए बैलेंस्ड लाइफ. आपके पास बहुत पैसा है लेकिन बाकी चीजें गड़बड़ है तो गड़बड़ है. आप हेल्दी हो लेकिन बाकी चीजें अगेन गड़बड़ है तो गड़बड़ है. 3 चीजें हैं, एक चीज नहीं है तो भी गड़बड़ है. आई होप द कंसेप्ट अबाउट व्हील्स ऑफ लाइफ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें क्लैरिटी है. सो एक नया व्यू मिला या नया कंसेप्ट मिला, या हो सकता आप पहले से जानते थे, लेकिन यस इस तरीके से हम देख सकते हैं. अगर ऐसा कुछ लगा तो प्लीज अगर आप इस चीज से एग्री करते होंगे तो चैट बॉक्स में आई वांट कुछ रिस्पॉन्सेस देखना चाहूंगा मैं आप लोगों का. ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू. सो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे एक फिर से आप लोगों के सामने एक स्टोरी लेके आ रहा हूं, और किस तरीके से हम अपने लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हैं, क्या किन किन चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं और हमारा लाइफ कंप्लीटली इन लाइन होगा, आज हम इस पे बात करने वाले हैं. लेकिन यहां पे मैं बताना चाहूंगा, वी ऑल आर राइट. If we talk about these 4 areas of our life only, we are at certain point that is called point A of our life, right? And in all the areas we want to reach, so that is point B, that you aspire to reach there, that's where you want to be, but somehow you are not there. Now your current status is at point A. You want to go to point B. So what is this point B? This point B is nothing but your destination, your target, your goal, whatever you can say. So friends, here I would like to ask you, do you remember last time when you traveled? Not local travel, I'm saying outstation. So for example, Mumbai to Kolkata, Kolkata to Delhi, wherever. So if your point A is Mumbai and point B is Kolkata, Kolkata is your destination, right? So you decided, first of all, you decided to go to Kolkata, and you starting your travel from Mumbai. So Mumbai is your point A and point B is your Kolkata. So when you are planning to go, when you have decided your destination, lot many preparation you need to do, right? आपको लगेज लेना पड़ा, बैगेज लेना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ा, टाइम पे पहुंचे, देन ट्रेन पे चढ़े, उसके बाद ट्रेन अपना टाइम लिया, देन आपका टाइम आपके गोल को एक टाइम के बाद पहुंचाता है. सो दैट इज कॉल्ड ए सक्सेसफुल जर्नी एंड रीचिंग द डेस्टिनेशन और रीचिंग द गोल्स. सो एक छोटा सा ट्रेवल करने के लिए हमें इतना ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है, राइट? एंड दैट्स हाउ वी रीच आवर गोल्स. हियर आवर लाइफ इस दुनिया में जब हम आ गए तभी से चालू हो गया. सो वी स्टार्ट आवर लाइफ विथ पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड बर्थ, एंड इट विल एंड एट पॉइंट डी, दैट इज डेथ. सो डेथ इज द अल्टीमेट गोल, यू कैन से. वो हर किसी को पता है. बट बिटवीन बी टू डी देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन माइलस्टोन,
few are short term, few are mid term, few are long terms, but they are there, they exist, and even we know that these are going to happen in our life. But do you plan for all those goals, or you are just moving? तो फर्ज कीजिए आपको बॉम्बे से कोलकाता जाना था, लेकिन आपने कोई तैयारी ही नहीं की और किसी भी गाड़ी में चढ़ जाएंगे. डू यू थिंक एनी टाइम यू विल बी रीच टू योर डेस्टिनेशन? जब एक छोटे से ट्रैवल में हम अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच सकते हैं बिना प्लान का, हाउ डू यू थिंक दैट यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन इन योर लाइफ? सो फ्रेंड्स, as I was telling you, I'm going to share you a very illogical story. Here I'm telling you, illogical story. Few of my friends maybe here, if somebody from IITD maybe knowing this story, but I would like to put it in a different way. Hope you will enjoy it. Okay. And again, there is a saying called, जिनके नहीं होते हैं गोल वो घूमते हैं गोल गोल. ठीक है. सो गोल्स होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, और गोल्स डिसाइड करना जरूरी है, और उसके तरफ मूव करना जरूरी है. तो आप गोल को अचीव कर लोगे. कभी जल्दी होगा, कभी लेट में होगा. आई होप द मैसेज इज वेरी मच क्लियर एंड लाउड माय फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. सो स्टोरी कुछ ऐसा है, एक पहाड़ है और पहाड़ के बीचों बीच एक रोड जा रही है ऊपर की ओर. राइट. उस रोड में, अच्छा उस समय जो है मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं, और उस पहाड़ में एक रोड जो दिख रही है, उस रोड में एक बहुत तेज रफ्तार से एक एम्बुलेंस जा रही है. उस एम्बुलेंस के पास जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं उस एम्बुलेंस के फ्रंट सीट पे वीरप्पन बैठा हुआ ड्राइवर के साथ. वीरप्पन आप लोग जानते हैं सभी, इसका नाम आज के डेट में नहीं है. एंड जैसा कि मैंने बोला, फ्रेंड्स स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? I want somebody to respond. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ओके ओके. Yes, yes, we can see the screen. Sure, sure. Thanks. So, मैं फिर से बोल रहा हूं. एक रोड है, एक पहाड़ है, पहाड़ में एक रोड जा रही है, ऊपर की ओर जाते हुए दिख रही है. मॉर्निंग के 8 बजे हैं, और उस रोड में बहुत तेज रफ्तार से एक एम्बुलेंस आगे की ओर जा रही है, बहुत ही तेज रफ्तार से. राइट. उस एम्बुलेंस के अंदर कौन बैठा है? वीरप्पन ड्राइवर के साथ बैठा हुआ है. और पीछे की सीट में हम देखते हैं लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के एक्स सीएम थे ना, उनकी फैमिली बैठी हुई है. और ऐसा देखने से पता लग रहा है कि वीरप्पन ने शायद उनके लालू प्रसाद के फैमिली को किडनैप करके लेके जा रहा है. जब हम लोग और थोड़ा क्लोज जाते हैं, देखते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उनकी मिसेज जो है राबड़ी देवी, वो अनपढ़ थी. राइट. तो उनको बहुत पढ़ना नहीं आता था, तो वो स्पोकन इंग्लिश का एक बुक अपने हाथ में रखी हुई है, वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही है. राइट. देन हम ये भी देखते हैं, वो फैमिली के बगल में एक बैग रखा हुआ है, बैग जो है नोटों से भरा हुआ है. फ्रेंड्स, एम्बुलेंस आगे जाती है और उस पहाड़ को क्रॉस करके एक कबीले के पास पहुंचती है. एक गांव होता है, और उस गांव में बहुत सारे लोग पहले से वेट कर रहे हैं. उनको शायद पहले से इंफॉर्मेशन था कि वीरप्पन आ रहा है. उसके बाद ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, और वीरप्पन क्या करता है, वो नोटों की गड्डी जो थैला होता है उससे सारे नोट्स निकालते हैं और गांव वालों के पास पूरे नोट बांट देता है. और ये देख के गांव वाले जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वीरप्पन को एकदम कंधों पे चढ़ा लेते हैं. और वहां पे जो उसका इमेज है, वो एकदम भगवान वाला इमेज है. वो दुनिया के लिए वीरप्पन क्या था सबको पता है. इवन लालू प्रसाद एंड फैमिली के लिए वीरप्पन एक आतंकवादी था, लूटने वाला बंदा था, जो लोगों को लूटता था, या जो भी था, आतंकवादी था बेसिकली. राइट. बट वहां पे वो लोगों के लिए भगवान था. एंड फाइनली दिन बीतती है, लेटर इवनिंग में वहां पे सब लोग जो है पूरा पार्टी साटी धमाल मचाते हैं, और वो लोग खूब एंजॉय करते हैं.
एंड वो लोग भूल जाते हैं कि बाकी दुनिया भी कुछ है। दे रियली मतलब उस एंजॉयमेंट में डूब जाते हैं और खूब सारा मस्ती करते हैं। फ्रेंड, स्टोरी कैसी लगी पहले तो मैं सुनना चाहूंगा। मैंने पहले ही बताया था कि ये एक इलॉजिकल स्टोरी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स को शायद पहले से ये स्टोरी पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ये एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। सो स्टोरी इलॉजिकल स्टोरी था, लेकिन इस एक स्टोरी से हमें हमारे लाइफ में कितने टाइप के गोल्स होने चाहिए, गोल्स क्यों होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें हमें पता लगती है। सो फ्रेंड्स, ओके, चैट बॉक्स में किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड किया? ओके, फैंटास्टिक। चैट बॉक्स में देख नहीं पा रहा हूं, सो कोई बात नहीं। या सो स्टोरी, मैं फिर से स्टोरी में आता हूं। स्टोरी क्या था? पहाड़ देख पा रहे हैं, पहाड़ में एक रोड देख पा रहे हैं, और उस टाइम सुबह के 8 बजे हैं। इससे हमें क्या लेसन लेना है कि हमारे जो गोल्स होने चाहिए, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, वेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप का एरिया हो, या फिर पीस ऑफ माइंड का एरिया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्स जो होने चाहिए पहाड़ के जैसे ऊंचे होने चाहिए। गोल्स छोटे होने ही नहीं चाहिए। मतलब एक होता है ना, अभी आप पॉइंट ए में हो और पॉइंट बी जो है हाथ बढ़ाया और पहुंच लिया, तो वो गोल नहीं हुआ, वो तो बस ऐसे ही आप अचीव कर सकते हो। गोल्स हमेशा पहाड़ जैसे ऊंचे होने चाहिए। फ्रेंड्स, याद कीजिए गांधी जी को जब ट्रेन से धक्का दिया गया साउथ अफ्रीका में, उस जगह पे रह के उन्होंने क्या सोचा? अंग्रेजों को भगाना है हमारे देश को और आजादी दिलाना है, दैट टू अहिंसा के रास्ते से। डू यू थिंक उस मोमेंट पे, जहां पे पिछले 200 साल से आजादी के लिए भारत जूझ रहा था, और उस मोमेंट पे उन्होंने सोचा, किस बेस पे सोचा होगा? क्या उनको भी पता था क्या कि आजादी वो दिला के ही रहेंगे? लेकिन उन्होंने सोचा, और उस दौरान अगर वो नहीं भी दिला पाते तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैसेज जो मैं देना चाहता हूं, आप अपने गोल्स, विजन जो बनाना है उसको बड़ा बनाइए, बड़ा रखिए। कितने सारे और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग तो रास्ते में ही उनके साथ या तो उनको फांसी में चढ़ा दिया गया या तो कुछ मर गए। तो क्या हुआ? वो फ्रीडम फाइटर नहीं कहलाए? क्या उनका जो वो बलिदान था, वो दैट वाज नॉट एनफ? इवन दैट वाज एनफ, राइट? सो फ्रेंड्स, our goal should be big, higher, just like a big hill. Doesn't matter you achieve it or not, but then पहले तो आप अपना विजन को क्लियर रखो, बड़ा रखो, गोल को बड़ा रखो। इसको दोनों को, विजन और गोल को हम मैच कर रहे हैं, राइट? दोनों को एक साथ में रख के हम बात करना चाह रहे हैं, सो दैट आई होप इट्स क्लियर। सो गोल कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। देन हम क्या देखते हैं? रोड मतलब रोड मैप। इसको रोड को हम रोड मैप के साथ लिंक करना चाहेंगे। सो बेसिकली व्हेन यू हैव ए गोल, you also should have a roadmap to achieve that goal. You are clear with your goals. Now, how you are going to achieve those goals? You should have a proper roadmap, proper plan to achieve that. ये नहीं कि you aspire to achieve a goal, but then you don't have a roadmap, then it's just a wish. I hope it's clear, my friend. Because without planning, without roadmap, if you are going nowhere. हमने पहले ही बात कर लिया ट्रेन और उसका एग्जाम्पल देके। सो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड, घड़ी, टाइम से आई वुड लाइक टू रिलेट विथ इट टू टाइम बाउंड। whatever is your goal, whatever is your vision, fix a time with. Declare it कि by when you are going to achieve your goal. Doesn't matter if you don't achieve by that time. Doesn't matter. If in case if you are achieving, it's fine. If not achieving, extend the time. But
It doesn't mean, it should not be there in your mind that okay fine, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, डेट हम पीछे कर लेंगे. No. Goal, proper planning, roadmap, time bound, and just go for it like that कि इसको तो मुझे अचीव करना ही है. Now, so goals high होने चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए. These are the three important things. But क्या क्या गोल होना चाहिए? The first goal, friends, health goal. There are people who simply don't care about their health. They just don't bother about their health. They simply, ignore their health. People who are young, dynamic, but then they are workaholic. They are like कुछ भी खा लेते हैं, कितना देर तक भी सोते नहीं हैं, जगह रहते हैं, कुछ भी पी लेते हैं. एंड अभी जब बॉडी में ताकत होती है, when you are young, it doesn't affect much. But time comes when actually it will affect your body and it will harm you like anything. And when you lose your health, after that, nothing is going to come back. So बोलते हैं ना, there is a saying, very well saying, अगर पैसा गया, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया. अगर वो हेल्थ गया तो समझो कुछ गया, एंड कैरेक्टर गया तो समझो सब कुछ गया. सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू द कैरेक्टर थिंग्स, बट यस, हेल्थ अगर गया तो बहुत कुछ मतलब कुछ गया. ठीक है, समथिंग यू लॉस्ट व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक. सो हेल्थ इज शुड बी द फर्स्ट गोल ऑफ योर लाइफ. आप देखो, जस्ट ट्राई टू spare some time with yourself and just check what the things you do or doing which are actually harming your health. So that's where you will get the access, and you please stop now only doing all those nonsense activity, nonsense things which are actually not helping your health. फ्रेंड्स, मैं फिर से यहाँ पे जोर दे के बोलना चाहता हूं, अगर आप खुद कल को फिट नहीं रहेंगे तो क्या आप काम कर पाएंगे? आज आप सही हैं तो आपकी घर चल रही है, आपका घर का आप टेक केयर कर पा रहे हो, आप फैमिली वाले को टाइम दे पा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, मजे कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो. कल को अगर आप अस्वस्थ हो जाते हैं, अगर कल को आप अनहेल्दी हो जाते हैं, डू यू थिंक ये सारी चीजें हो पाएगी? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप सोचो अगर बेड रिडन हो जाते हैं. शुरुआत में कुछ लोग दोस्त यार सबको ही आ जाएंगे, रिलेटिव आ जाएंगे, देखने आ जाएंगे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अकेले बेड में हो, इवन घर वाले भी इट्स लाइक ओके, आप लेटे हो ना, सांस चल रही है, दैट्स फाइन, लाइक दैट. एंड नॉट ओनली दैट, you are simply not going to enjoy your life. आप जो अच्छी चीजें होती है खाने को, वो भी नहीं खा सकते हो. अभी घर पे बेड में अगर पड़े रहोगे, कुछ पहनना घूमना भी करने की स्थिति में नहीं रहोगे तो वो भी नहीं कर सकते हो. So I'm telling you the worst thing, but worst कैसे आता है? शुरुआत तो एक स्टेप से होती है ना. तो अगर शुरुआत से ही आप अगर सही रहोगे, अपने हेल्थ पे कंट्रोल करोगे और अच्छा हेल्थ रहेगा, सो वो बोलते हैं ना, इफ यू आर ओके एवरीथिंग इज ओके. इफ यू आर इन ए पोजिशन टू हेल्प अदर्स, देन ओनली यू, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्थ. सो नाउ जस्ट चेक, यू आर ओवरवेट और अंडरवेट. सो व्हाट शुड बी योर हेल्थ गोल, राइट? अगर ओवरवेट है, आपको लूज करना है वेट, तो उसके लिए अगेन अभी 80 किलो में है, 70 किलो में पहुंचना है. ठीक है, तो एक टारगेट ले लें, 1 साल का टारगेट ले लें, या 6 महीना का एक टारगेट ले लें. देन 2-2 किलो कितना कितना टाइम में आप अचीव करोगे, उसको फिर डिवाइड कर दें, एंड एक प्रॉपर प्लान कर लें कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूंगा, मेरा डाइट चार्ट ऐसे रहेगा. इन दैट वे यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड यू विल अचीव योर टारगेट. सो हेल्थ गोल, फ्रेंड. सेकंड, वीरप्पन. He was well known terrorist, right?
and he was known for his bad work. आदमी बुरा था, लेकिन बोलते हैं ना, बुराई का काम को भी ईमानदारी के साथ करता था, एंड इसके लिए उसका नाम इतना बड़ा हुआ. सो हिज प्रोफेशन, यहां से मैं प्रोफेशन को लिंक करता हूं, एंड मैं यहाँ पे आपको जो मैसेज देना चाहता हूं, दैट इज आपका प्रोफेशनल गोल्स होना चाहिए. नेक्स्ट, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, जिस किसी भी एरिया पे हो, आज के डेट में आप जिस पोजीशन में हो, दैट इज योर पॉइंट ए. कहां पहुंचना चाहते हो, पॉइंट बी, दैट इज योर गोल. सो फॉर एग्जांपल, आपका प्रोफेशनल गोल्स, आप एक पोजीशन में हो, आप प्रमोशन चाहते हो, नेक्स्ट अगला प्रमोशन सेम जॉब में, तो दैट इज योर प्रोफेशनल गोल. आपकी सैलरी हाइक चाहते हो 30%, 40%, व्हाटएवर, तो अभी जो है और जितना अचीव करना चाहते हो, दैट इज योर प्रोफेशनल गोल. साल के अंत में इंसेंटिव इतना ज्यादा कमाना चाहते हो जॉब के थ्रू से, सो दैट इज योर प्रोफेशनल गोल. बिजनेस कर रहे हैं, सो बिजनेस में आज के डेट में एक्स टर्नओवर हो रहा है, आप वाई टर्नओवर चाहते हो, सो दैट इज योर प्रोफेशनल गोल, बिजनेस गोल, राइट. सो वीरप्पन से मैं सिंपली इस चीज को रिलेट करना चाहता हूं. और यस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हेल्थ फर्स्ट, बट उसके बाद जो कुछ भी चाहिए उसके लिए तो वेल्थ चाहिए ही होता है. आपका बच्चा का अगर समझ लो स्कूल है, स्कूल में अभी आपके पास पैसे की स्थिति ठीक नहीं है और आप बच्चे का स्कूल का फी भी पे नहीं कर पा रहे हो, आप जाओगे स्कूल में और उनको रिक्वेस्ट करोगे कि आई एम नॉट एबल टू पे द स्कूल फी फॉर माय किड्स एजुकेशन, डू यू थिंक स्कूल विल कंसीडर? नो, दे विल सिंपली से ओके फाइन, देन आप अपने बच्चे को ले जाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं. So it's not about the basic thing. For anything, wealth is required, and wealth is like that will come from your work only. So उसमें आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वहां पे और अच्छा होता जाएगा, right? So third is family. Friends, after your work or the maximum time where you give is your family, whatever your position is now, it's because of your family. Maybe your parents, siblings, spouse, kids, everybody's, their contribution is there because of that what you are now. But then over a period of time, what people thinks, अच्छा मेरे वजह से तो मेरा घर चल रहा, मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं इनका क्या हो जाएगा. इवन कई बार इस वजह से फैमिली में झगड़े भी हो जाते हैं. सो हियर आई वांट टू गिव यू अ वेरी क्लियर मैसेज, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली नॉट स्पेशली टू ऑल. सो फैमिली में जेंट्स होते हैं, लेडीज होते हैं, वाइफ होते हैं, हस्बैंड होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, राइट. क्या लगता है लाइफ में ग्रो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जेंट्स को मिला हुआ है, लेडीज को नहीं? क्या भाई को मिला हुआ है, बहन को नहीं? फ्रेंड्स, लाइफ में ग्रो करना है, इस दुनिया से तो हर किसी को जाना है. लाइफ में जो ग्रो करना है हर किसी को करना है. स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को. एक फैमिली में दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है. लड़का खेलने कूदने में स्मार्ट है, पढ़ने में एवरेज है, चलता है, वो कुछ करता है, आगे बढ़ता जाता. लड़की जो है वो टैलेंटेड है, वो खेलकूद में भी आगे है, पढ़ाई लिखाई में भी आगे है, और इस तरीके से वो लोग बड़े होते हैं धीरे धीरे. लड़की स्कूल में टॉप करती है, कॉलेज में टॉप करती है, कल को जॉब होता है, उसके बाद जॉब में भी वो आउट परफॉर्म करती है. एंड एक टाइम आता है जहां पे उसके पेरेंट डिसाइड करते हैं कि इसका शादी कर देना चाहिए, एंड उसकी शादी हो जाती है. शादी के बाद क्या होता है, लड़की जो बेस्ट है, लड़का जो सेकंड बेस्ट है, वो सेकंड बेस्ट के हवाले लड़की को कर दिया जाता है. और वहां पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी का जो दौर चलता है, कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करना है? नहीं करना है. तो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहे और लाइफ भी आगे बढ़ते रहे तो कैसा हो? देन वो लड़की कल को उसके बच्चे होते हैं, वो क्या सोचती है, ओके फाइन, मैंने तो कुर्बानी दी, मैंने कॉम्प्रोमाइज की, मेरी जो बेटी होगी ना वो नहीं करेगी.
अब उसके ऊपर खूब मेहनत करती है, उसको डांस सीखना, डांस सिखाती है, म्यूजिक सिखाना, म्यूजिक सिखाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एजुकेशन में भी टॉप टॉप टॉप, देन फाइनली फिर हायर एजुकेशन टॉप, एंड उसके बाद फिर जॉब, बिजनेस, जो भी उधर ठीक, लेकिन फिर शादी होता है, फिर सेकंड बेस्ट के हवाले। फ्रेंड्स, ये बातें थोड़ी सी किसी को चुप भी रही होगी, हो सकता है, बट क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? अभी अगर सोचिए, कल तक पास्ट को हम नहीं चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आज के डेट में देखिए कि अपने अपने घर में क्या स्थिति है। अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ क्या कर रही है, क्या वो पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी नहीं भी हो, तो मैं बोलता हूं कभी आपने उसको पूछा है कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ? बस क्या चूल्हा चौका और लाके उनको पकड़ा दिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए और बात खत्म हो गई? क्या इसी के लिए है वो? कभी साथ में बैठिए, क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहती हैं, पूछिए, और जिस तरीके से वो आपको हेल्प करी है उस तरीके से आप उसको हेल्प कीजिए, एंड बिलीव मी, आने वाले दिनों में एज ए फैमिली, वाइफ हस्बैंड दोनों ग्रो कर रहे हैं, फैमिली में बेटा बेटी हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, और लाइफ में जो चाहते हैं अगर उसको अचीव करेंगे तो क्या जबरदस्त सीन होगा। सो फ्रेंड्स, द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली, जिसके बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ आगे आगे आप नहीं बढ़ते जाइए, आपके साथ आपके लोग भी बढ़ते जाएंगे और सबको ही सेम प्लेटफॉर्म में रहेंगे, तो उसका क्या मजा है, कितनी इंस्पायरिंग होगी, राइट? आई होप अभी तक की जो स्टोरी है ये इंटरेस्टिंग लग रही है आप लोगों को, और कुछ तो नया व्यू मिल रहा। अगर ऐसा कुछ है, कुछ नया लर्निंग है, नया व्यू मिल रहा, तो प्लीज मैं चाहूंगा आप लोग चैट बॉक्स में कुछ रिस्पॉन्ड करें, सो दैट मुझे पता लगे कि अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं। गोइंग गुड, रियलिटी, थैंक यू, थैंक यू गाइज। आप लोग सो तो नहीं रहे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या सो हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। या नेक्स्ट, एजुकेशन गोल। हम मैट्रिक पास करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, कुछ लोग तो टेक्निकल जॉब करते हैं, आई मीन एजुकेशन लेते हैं, और उसके बाद एक फाइन डे पे प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री लेते हैं जॉब के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से, और हमें यह लगता है हमने जो सीखा उसी से हमारी लाइफ कट जाएगी। दोस्तों, टाइम बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, आज के डेट में हर चीज बदल रहा है। टेक्नोलॉजी 6 महीने में पुराना हो जाता है, और आप सोचते हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो अभी शायद कुछ चेंजेस आ रही है वो अलग बात है, बट देन ये सिस्टम 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले वो बुक्स लिखा गया है, और उसके हिसाब से वो एजुकेशन सिस्टम आपने जो कंप्लीट करा, जिसका कि रियल लाइफ में दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। लाइफ स्किल जो एक्चुअल में जो चाहिए होती है वो अलग होती है, और प्रैक्टिकल लाइफ में अगेन उसका कोई यूज ही नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल लाइफ में अगेन, जॉब में, बिजनेस में आपको ग्रो करना होगा तो सिर्फ उसी पुराने और एजुकेशन सिस्टम से पास करके जो आप निकले हैं उसके भरोसे अगर रहेंगे तो नहीं चलने वाला है। आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस में अपडेट करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि लिमिटेड ये के साथ रहेंगे, तो अगेन आप में से हो सकता है कई लोग इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे, करते रहे होंगे, आपके घर में होता रहा होगा, जो कंप्लेन करते हैं, अरे मेरे से बाद में आया बंदा मेरे से आगे निकल गया, मेरे साथ में था वो आगे निकल गया, और आप जो है वहीं बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक बंदा एक पोजीशन में ज्वाइन करता है और उसी पोजीशन में रिटायर हो जाता है, और उसके साथ वाले प्रमोशन ले लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है, कभी सोचा है? It's because of this education. The people who upgrade themselves, they grow in life. So just imagine, आज के डेट में, आज के जरूरत के हिसाब से, what's the next area, I mean next education you can acquire, and by doing that you can help in your business, you can help yourself
to move to the next level in your job. You can get promotion like that. So it is very much important, friends. अगर आप अभी तक आप सोच रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और जरूरत नहीं है, तो बहुत गलत सोच रहे हैं. कब आप आउटडेटेड हो जाएंगे, और एज होने के बाद, आउटडेटेड होने के बाद अगर जॉब में आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद रो के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको फिर जॉब भी नहीं मिलेगी और कुछ करने लायक भी स्थिति में नहीं रहेंगे. सो बेस्ट थिंग, एजुकेशन पे एक सर्टेन अमाउंट, कभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग और मनी मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तब हम डिटेल्स में उस पर बात करेंगे, मे बी इस 10 सेशन में भी कभी रहेगा. तो किस तरीके से एक सर्टेन अमाउंट आप अपने एजुकेशन के लिए एलोकेट कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं. दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड. आप पैसा कमाते हैं, उस पैसा को सिर्फ फैमिली में उड़ाने के लिए, अपने ऊपर उड़ाने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए नहीं खर्च करें, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी खर्च करें. सो फ्रेंड्स, this should be your fourth goal, that is education goal. The next friend, wealth goal. मैं फिर से घूम फिर के wealth में आ ही जाता हूँ, क्योंकि wealth manager हूँ, but then it's equally important and in fact the most important, again I'll say, सब कुछ है, wealthy नहीं है. आपको जो कुछ चाहिए लाइफ में आज के डेट में, उसके लिए पैसा तो चाहिए. सो आप सोचिए आने वाले दिनों में आपके लाइफ में क्या आने वाला है, उसके लिए कितना पैसे की जरूरत होगी, तो उसके हिसाब से प्रॉपर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली उसके लिए आप प्रॉपर प्लान करें, उसके लिए अपना इनकम बढ़ाएं, उसके लिए अपना सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, व्हाटएवर इज द थिंग. बट देन यू शुड हैव, आज के डेट में अगर आप एक्स पोजीशन में हैं, आज के डेट में अगर आपका नेटवर्थ कुछ भी हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी है आपका नेटवर्थ, और आज से 10 साल बाद अगर आप 1 करोड़ का नेटवर्थ में ही बैठे रहेंगे, सो एक्चुअली आप डिग्रो करेंगे. व्हाई? बिकॉज वो इन्फ्लेशन का कंसेप्ट और वो सारी चीजें, खैर उसके बारे में मैं बाद में कभी डिटेल में बात करूंगा. सो कहने का मतलब है, टाइम के साथ साथ आप अपना गोल, वेल्थ गोल भी बनाएं, आपका नेटवर्थ भी टाइम के साथ साथ बढ़ना चाहिए, तभी टाइम के साथ साथ आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा, और आपको जो लाइफ में चाहिए वो मिलेगा. जिस तरीके से आप लाइफ को अपना जीना चाहते हैं, उस तरीके से अपना लाइफ को आप जी पाएंगे. होप द मैसेज इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर. थैंक यू. यस, नाउ अगेन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप हेल्दी हैं, आप वेल्दी हैं, आप अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स फाइन. इनफैक्ट आपके पास जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है. So the next thing what you should do or what you should have, that is social goal. Now it's the time to giving back to the society. Friends, हमारे ग्रोथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली का तो हाथ होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का भी हाथ होता है. कई बार सोसाइटी के किसी इंसान से या किसी एक्टिविटी से हम लेसन लेते हैं, हम इंस्पायर होते हैं, एंड दैट बूस्ट अस. सो कहने का मतलब है किसी भी तरीके से. सो देयर आर पीपल हु आर एक्चुअल इन नीड. नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू गिव, टू हेल्प. सो स्टार्ट गिविंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड नॉट नेसेसरली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इवन व्हाटएवर इज योर सिचुएशन. नाउ इतना तो है, अपना पोजीशन के हिसाब से कुछ तो किसी को हेल्प करने के का पोजीशन में आप रहते ही हैं हमेशा. इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, मे बी इट्स टाइम, मे बी इट्स एजुकेशन, एनीथिंग, एनी वे, स्टार्ट गिविंग टू द सोसाइटी. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड गिवर्स गेन, राइट. सो गिवर्स गेन का जो कंसेप्ट है, उसमें यह बोला गया है कि अगर आप किसी को देते हो, किसी को हेल्प करते हो, तो बदले में आपको मल्टीफोल्ड में वापस मिलता है. दिस इज द पावर ऑफ गिविंग. हियर आई एम नॉट सेइंग कि आपको मिलेगा इसके लिए आप दो, प्योर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सिंसियरली, मतलब हेल्प करने के नजरिए से you start giving, and out of that the kind of peace, mental peace, the kind of feeling you will get, that is next level. So friends, social goal is equally important. जितने भी बड़े आदमी लोगों को आप देख लें, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, अपने रतन टाटा, अंबानी,
एक्टर्स अक्षय कुमार, शाहरुख खान और बाकी लोग भी, ठीक है, अमिताभ बच्चन, दे डू लॉट ऑफ चैरिटी। तो चैरिटी उसको पुण्य मिलेगा ये सोच के नहीं करने का, चैरिटी बस कर डालने का। वॉरेन बफेट अपना वेल्थ का कुछ 90% डोनेट कर चुका है, चैरिटी में डाल चुका है। बिल गेट्स कितने सारे फाउंडेशन चला रहा है, वर्ल्ड वाइड लोगों को हेल्प कर रहा है। टाटा वो तो दान देते ही रहते हैं, इसमें कोरोना टाइम पे ऑलरेडी 1500 करोड़ दान दे चुके हैं, और भी कितना कुछ करते रहते हैं। क्या वो गरीब हो जाते हैं? देखो एक चीज समझने की बात है, बाय डूइंग चैरिटी यू आर नॉट गोइंग टू बी पुअर। देने वाला कभी भी गरीब नहीं होता है। दिस इज द थिंग, दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज। हमने रामायण महाभारत की बात करें तो कर्ण सबसे बड़ा दानवीर बोला जाता था, लेकिन कर्ण से ज्यादा धनी तो ये लोग थे, कौरव स्पेशली, लेकिन उनको नहीं माना गया। लेकिन कौरव हमेशा दान करता था, डेली सुबह को दान करता था, उसके बाद क्या वो गरीब थोड़ी हो गया था। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव। So friends, so far so now, how is the learning going on? I want some quick responses from all of you. Please reply in the chat box. Giving is also joy. Yes, yes, sir. Great, great. Thank you, Nagi Reddy sir. Great. Anand Jain is saying great. Fantastic. बाकी लोग सो गए क्या? Suryamani Kumar is saying joy, valuable, nice, awesome. Fantastic, fantastic. Thank you, Raja. Thank you, Anuradha, ma'am. Santanu, the more you give, the more you get. Yes, yes, ma'am. So true. What you give, come back in multifold. James is saying, thanks, Amit. Thank you, James. Yeah. So let's move forward. Lastly, हम लोग स्टोरी में क्या देखते हैं? तो स्टोरी से ही सब कनेक्ट करता हुआ हम चीजों को लिंक कर रहे हैं, राइट। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि वो कबीले में पहुंचता है, पूरा नोट बांट देता है, तो सोसाइटी के लिए वही देने वाली बात हो गई। देन उसके बाद वहां पे लोगों का रिस्पांस कैसा था, उसको एकदम उठा लेते हैं और भगवान के जैसे पूज रहे हैं। सो फ्रेंड, दिस इज द अल्टीमेट थिंग। यहाँ पे वो गॉड से मैं स्पिरिचुअलिटी को लिंक करता हूं। सो we all should connect with spirituality. Connecting with spirituality, it's like connecting with yourself, connecting with God, whatever you say. ठीक है, आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, that's a separate thing, but it's like connecting with self. आप बोल सकते हो, हम मानते हैं ना इस बात को, हम सब में भी भगवान मौजूद है, ठीक है। So connecting with self, spirituality, इसके लिए आप कुछ करें, मे बी कुछ अच्छा बुक्स पढ़ सकते हैं, मे बी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मे बी कुछ ऐसे जगह जहां पे डिवाइन बोलते हैं ना, वहां जाएं, वहां पे बस सिंपली टाइम स्पेंड करें, दिमाग में कुछ नहीं हो, एकदम शांत खाली, और यू जस्ट फील, यू जस्ट रियलाइज, आप देखोगे, आप पाओगे कि आप मेंटली और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, मेंटली और ज्यादा पीस फील कर रहे हैं, मेंटली आप और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड फ्रेंड्स। जो बड़े लोग होते हैं ना, रिच वेल्दी लोग होते हैं, इफ यू विल सी, अब उनके लाइफ में करने को कुछ बचा नहीं। हेल्थ सही है, वेल्थ भी सही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अच्छे लोग हैं, है ना, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे हैं लेकिन इधर हेल्थ गया हुआ नहीं, रिलेशन गया हुआ नहीं। जब ऐसे कुछ फैमिलीज हैं, पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता भी हूं, सो दे आर लाइक, कैसा होता है ना, हर चीज अब कंप्लीट हो गया। अभी सोसाइटी को भी बहुत सारा चैरिटी दे रहे हैं। सो दे गो फॉर पीस, अल्टीमेट पीस, दैट इज कॉल्ड, दैट इज। सो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो सुबह में उठें, अक्षय कुमार भी बोलते हैं इस बात को, आप क्या दौड़ा भागी में लगे रहते हो, सुबह उठते हो और सुबह उठते के साथ लग जाते हो काम करने में, घर का काम में, तो ऑफिस का, फोन, सबसे पहले तो फोन में जाके जंप करते हो, जैसे कि दुनिया अभी खत्म होने वाला है या कुछ छोड़ के आपके लिए गया है, तो सबसे पहले मोबाइल पे जंप करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर। बता रहा हूं, पर्सनली मैं प्रैक्टिस करता हूं। मैं आज के डेट में यहाँ पे जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग, व्हाट आई एम डूइंग डे टू डे लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। Nothing. It's like वो बोलते हैं ना, walk the talk. That's what. So and yes, कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले तक भी मैं ऐसा नहीं था,
सो मैं बोलने की भी स्थिति में नहीं था। अगर मैं खुद नहीं करता और ये बोलता तो इट्स लाइक ज्ञान हो जाती। तो वट एवर आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ज्ञान, out of my practical experience. And let me just tell you, especially in last 3 months, the kind of benefits I am getting out of it is extreme. The people who are connected with me in person, they are knowing me the way I am achieving the things. Here I am not to tell the positive thing or the big thing about me or something like that, but then this is the fact. You start knowing about yourself closely, and that's how you connect with the God. पहला 2 घंटा अक्षय कुमार जो बोलता है, अपने लिए निकालो ना। अगर आपको लगता है कि आपका 9 बजे दिन स्टार्ट होता है तो 6 बजे आप उठ जाओ और फोन तो 9 बजे ही पकड़ो, ठीक है। पहला 3 घंटा आप अपने लिए दो, उस दौरान सब कुछ आराम से करो। आपको फ्रेशन अप होना है, नहाना है, धोना है, जो भी करना है, थोड़ा देर बैठो, मेडिटेट करो, थोड़ा देर बैठो, एक्सरसाइज करो, विजुअलाइज करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। 3 घंटे में इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आपको लगेगा अरे दिन इतना बड़ा होता है। लेकिन वही 9 बजे अगर आपकी ऑफिस है, 9 बजे से आप काम चालू करते हैं, आप 8:30 बजे उठते हैं, तो होता है कि आप भागते हो। नो, दैट यू शुड नॉट डू दैट। वो नहीं करने का। आप उठो, पहले टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। कुछ नहीं तो कोने में बैठो, फैमिली सो रहा सोने दो, या उनको भी इंस्पायर करो कि वो करें। आप एक कोने में बैठ के दिमाग को जस्ट ठंडा रखो, और दिमाग में क्या क्या चीज ख्यालें आ रही हैं आने दो। पास्ट की चीजें आ रही है, फ्यूचर की चीजें आ रही है, ये आएंगी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है ना, आपका कंट्रोल प्रेजेंट पे होने लगेगा, और ना पास्ट आपको तकलीफ देगा, ना फ्यूचर आपको तकलीफ देगा। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड उसके बाद जो आपको पावर मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी जो कहीं गायब हो चुकी है वो वापस आएगी, एंड दैट्स हाउ यू विल लीड योर लाइफ, you will live your life the way you want, my friends. So because of for that only I am saying you must have your spiritual goal. Spirituality के मामले में बहुत लोगों को बोलते हैं ये अभी का टाइम नहीं है, अभी मेरा 25 साल हो रहा, 20 साल हो रहा, अभी तो खेलने के उम्र है, अभी वो 50 साल के बाद देखेंगे। No my friends, it's not related to age. आज आप जिस किसी भी एज में हो, यहां से आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो इन ए मैसिव वे। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी के मामले में अगर आपको कुछ नया एक्सेस मिला, नया व्यू मिला, तो प्लीज कुछ रिस्पॉन्स दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेट मी जस्ट चेक few of your responses. Fantastic, fantastic. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Let's move ahead. So friends, the spiritual goal, right? Lastly क्या होता है, वो लोग एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, डांस करते हैं, और वो लोग भूल जाते हैं बाकी दुनिया से क्या हो रहा है नहीं हो रहा, भूल जाते हैं। So friends, वो 7 गोल के अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। एक ऐसा चीज हर किसी में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जो है ना यूनिक हैं, ये बात मानते हैं आप लोग। करोड़ों की जनसंख्या है, इन स्पाइट ऑफ दैट वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बाय नेचर, बाय क्वालिटी, बाय लुकिंग, मतलब जैसे भी ले लो, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ गॉड, यू कैन से। कितने सारे लोग लेकिन एक दूसरे के जैसे नहीं है, सब अलग है। एंड बिलीव मी, हम सब के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, और उस यूनिक क्वालिटी को जो पहचान लेता है ना, सो बेसिकली वो दूसरे के नजर में अल्टीमेट हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल तेंदुलकर, फॉर एग्जांपल लता मंगेशकर, विराट कोहली, एंड देयर आर मेनी अदर नेम। एक्टर की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, हम सब में भी वो क्रिएटिविटी, वो यूनिकनेस कहीं तो दबा हुआ है। नाउ
एक वो यूनिकनेस, वो यूनिक क्वालिटी है, लेकिन समहाउ पहचान नहीं पाए, निकल नहीं पाया, अभी हम किसी और प्रोफेशन में आगे बढ़ चुके हैं, दैट्स फाइन। अभी एक नया चीज को लेके फिर से करना टफ हो सकता है, अगेन दैट इज एक्सेप्टेड, दैट इज फाइन। देन व्हाई दिस यूनिकनेस इज रिक्वायर्ड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करें कि वो है क्या, पहली बात तो ये। सो फॉर एग्जाम्पल, वो डांस हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, लोगों को हेल्प करने की बात हो सकती है, या एनी एक्टिविटी, राइट, एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। जस्ट आइडेंटिफाई दैट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग। बिलीव मी, एंड अगेन आप पूछ सकते हैं मुझे कि कैसे पता चलेगा, हमें तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली पता कैसे नहीं चला? रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, जीवन का आपाधापी, इसमें कब हम लाइफ जीना छोड़ चुके हैं पता ही नहीं चल रहा है। वो 15-17 साल में कितने लोग तो छोड़ चुके हैं। बचपन में कुछ था, वो पेरेंट ने कभी डांट दिया, कुछ कर दिया तो चला गया। अगेन कभी किसी ने बोल दिया इससे घर नहीं चलने वाला है, वट एवर इज द थिंग, लेट मी जस्ट टेल यू, उस एक यूनिकनेस, उस एक यूनिक एबिलिटी को बाहर निकालिए। एंड अगेन आप नोटिस कीजिए, ऐसा कौन सा काम है, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं, ऐसा कौन सा काम है जिसको आप करोगे 24 घंटा भी करोगे तो थकोगे नहीं। अगर वो भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो स्टार्ट टेकिंग हेल्प ऑफ योर स्पाउस, योर फ्रेंड्स, योर ओल्ड फ्रेंड्स। मे बी दे विल टेल यू कि भाई तेरे में ना ये कुछ बात था, ये चीज जो है ना, जो तुम कर सकता है कोई और नहीं कर सकता है। लाइक इन दैट वे यू कैन एक्सेस, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, स्टार्ट डूइंग दैट नाउ। उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम होगा कि नहीं होगा, शायद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाए, लेकिन आपको जीने के लिए एक नया मकसद मिल जाएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वो जब करते हो ना, एक्चुअली आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं। अगेन इसको भी मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करूंगा, बट दिस इज कॉल्ड समथिंग डिफरेंट, एंड दिस मे बी कॉल्ड 8th वंडर ऑफ योर लाइफ। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इसको डिस्कवर करो और उस पर काम करना चालू करो। इतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा ना, आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर जगह में आप फिर नेक्स्ट लेवल में जाने लगोगे। सिर्फ ये एक 8th वंडर अगर आप खोज लेते हो तो इससे ये पॉसिबल हो सकता है। बिलीव मी, ये आपको जीने का मकसद दे देगा, ये आपको री एनर्जाइज कर देगा। आपका एज 50 है तो शायद आप 40 के लगने लगोगे, 40 है तो 30 के लगने लगोगे, एंड 30 है तो बच्चे लगने लगोगे, 60 हो गए तो बच्चे हो जाओगे, कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ रियलिटी माय फ्रेंड्स। सो स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्ट wondering, start discover your 8th wonder and life will be amazing. Fantastic. So friends, हमने देखा लाइफ में जो गोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऊंचे होने चाहिए, रोड मैप उसके लिए क्लियर होने चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। पहला हेल्थ गोल, दूसरा प्रोफेशनल गोल, तीसरा फैमिली गोल, चौथा एजुकेशन गोल, पांचवा वेल्थ गोल, छठवां सोशल गोल, सातवां spiritual goal, and finally the 8th wonder of your life. Discover that. By doing so, let me just tell you again, coming to the wheels of life, अगर ऐसा करते हैं, अगर आप अपना हेल्थ गोल बना लेते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, so your health goal will link to your health will. Then by working on your family goal, आपका फैमिली रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, स्पाउस के साथ, पेरेंट के साथ, ठीक है, क्या अच्छा लगता नहीं लगता उधर आप देखो, एंड रिलेशनशिप सुधरने लगेगा। सो उससे आपका रिलेशनशिप विल काफी सही हो जाएगा। देन थर्ड, वेल्थ गोल, बाय वर्किंग ऑन योर प्रोफेशनल गोल्स, दैट आई एम लिंकिंग विथ वेल्थ गोल, एंड वेल्थ गोल, इसको करके आपका वेल्थ गोल, वेल्थ विल को ठीक करने का है। एंड लास्टली, पीस ऑफ माइंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन सब के बाद अगर पीस नहीं रहेगा तो मजा नहीं है लाइफ में। सो इसके लिए आप एजुकेशन पे अपना काम करो, जो आपको अपग्रेड करेगा, आपका दिमाग को शांत रखेगा, ठीक है।
देन स्पिरिचुअल गोल, इस चीज को आपको रखना जरूरी है। एंड फ्रेंड, जिस तरीके से गाड़ी में 4 चक्के हो तो गाड़ी बैलेंस रहेगा लेकिन एक ही जगह में खड़ा रहेगा, उसको आगे बढ़ने के लिए ड्राइवर की भी जरूरी होती है, ठीक है। सो ड्राइवर का जो काम करेगा, दैट विल बी योर 8th वंडर ऑफ लाइफ फ्रेंड्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक नहीं है और इस बारे में कभी सोचते भी नहीं थे, छोड़ चुके थे, आज आप किसी भी एज को बिलोंग करते हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर 8th वंडर ऑफ लाइफ एंड ऑफ कोर्स इन अदर गोल्स आल्सो। इट्स गोइंग टू टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। You will live your life the way you want. Now, conclude करने से पहले मैं यहाँ पे जो एक सॉल्यूशन, गोल बन गया ठीक है, लेकिन गोल को अचीव कैसे करें। गोल को अचीव करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा। सॉल्यूशन का नाम है GROP, ग्रोप मॉडल, राइट। सो G फॉर गोल, R for regions, O for obstacle, and P for plan. So friends, goals, किसी भी एरिया का गोल्स आपने ले लिया, you are at point B, point B जाना चाहते हैं तो point B is your goal. उसके पीछे, so goal has been decided, right? Now R for regions, why you feel that you can achieve that goal. Regions क्या है, पहले रीजन दीजिए। and why you want to achieve that goal. फ्रेंड्स, जब तक why क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, आप उस गोल के प्रति उतने सतर्क नहीं होंगे, फिर लाइटली लेंगे। so it would be like mere wish, so कभी भी आप सीरियस नहीं होंगे। and don't think, again I am saying, don't think कि कैसे होगा, इतना बड़ा गोल कैसे अचीव करेंगे, क्यों अचीव करेंगे, एंड क्या रीजंस है, व्हाट आर द रीजंस, दैट्स व्हाई मतलब यू फील दैट यू कैन अचीव दैट गोल। गेट क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट। इफ योर व्हाई विल बी क्लियर, हाउ विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस माय फ्रेंड्स। सो रीजन क्लियर हो गए। अब ओ फॉर ऑब्स्टेकल, ये इस गोल को अचीव करने में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं आप देखें। What are the hurdles? Now you have an excess of your regions as well as your obstacle. So based on your regions and based on your obstacle, can you make a plan? P for plan. And again, friends, plan should be there on, not on your head, but on paper. And start working on your paper, on your plan, start working and take massive action to get massive results. So that is the ultimate formula to achieve all the goals of your life. Now you get the formula. So I request all of you to go on. So here I conclude the session, my friends. I have given everything. Now again, आज का सेशन, आज का क्लास जो है सिर्फ ज्ञान का नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ तो नया सीख लिया, कुछ तो जबरदस्त मिल गया, है ना, और कल जाके भूल गए। अभी 10 दिनों तक हम साथ में रहने वाले हैं और every day you are going to get a new lesson and all those are going to be practical one. So आज जो हमने सीखा ये 7 एरिया and the 8th wonder, what I want all of you, all participants to work on it. आज का आज हो सके तो या तो चार्ट पेपर ले आए, चार्ट पेपर नहीं तो एक डायरी या कोई कॉपी ले लें एंड उसमें लिख डालिए क्या, what is your point B in particular area, and I want all of you to achieve success and happiness in your life, and by applying all these tools and working on all these things, definitely you are going to achieve it. With this, thank you so much. And yes, of course, I would like to hear something, about today's session. So you can reply on the chat box, और एक-एक करके unmute करके भी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं. Yeah, and again, I am open for question and answer. कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं. Thank you so much.
Sandeep Ji is saying very informative session. Thank you. Piyush is saying wonderful session. Thank you. Nagireddy, live Bindas group goal region obstacle plan. Yes, sir. Thank you. Anuradha ma'am is saying wonderful session. Thank you. Raja is saying awesome session, very informative. Information लेकर रहने का नहीं है राजा, काम करने का है एंड लाइफ को अभी नेक्स्ट लेवल में लेके जाने का. थैंक यू अशोक सर. अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं. Then on, you are unstoppable, explore and evolve. Thank you, Nagireddy sir. James, M. Thank you. Usa, acha. Thank you, well, so relevant to today's living. Sarmila is saying, thank you. Minachi is saying, good, today I came to know that what is the difference between goal and vision. Thank you. Great session. Thanks, Ravi. Minachi is saying, thanks, Amiji. Thank you. Anand is saying, always learn new things from you. Anandji, thank you. Santanu is great. Bhavesh is saying, thank you, wonderful session. Thank you, Bhavesh bhai. Aruna Prasad, thank you. Any questions if you want to ask? Great session, Amit. You have poured your heart in today's session. Thank you, Santanu sir. Any question if you have, you can ask me. I'm here to reply. Or maybe in next 2 minutes, we'll wind up the session. Again, thank you so much, everybody. And tomorrow's session के लिए हम communicate करेंगे. What time we are going to do? Maybe time में थोड़ा difference हो सकता है. Thank you, Saurabh sir. Yes, sir. Can you hear me? Thank you, Saurabh sir. Yes, sir. Amit, how to remove the confusion between choices? Sorry, come again. How to differentiate? How to remove the confusion between choices, different choices when you have. Okay. So the best way to do the things is, so you have two choices, for example, choice 1, choice 2, right? Just check your priorities, sir. आप थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, बट देन आप पाएंगे बाय सर्टेन डूइंग सर्टेन. कई बार ऐसा हो जाता है, कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए हो जाती है कि शायद दोनों ही इंपॉर्टेंट है. दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ सकते, उसको भी नहीं छोड़ सकते. सो वहां पे आपको करना ये होगा, थोड़ा सा शांत दिमाग लेके बैठ जाइए एंड जस्ट स्टार्ट कीजिए, लिस्टिंग कीजिए. ओके, इंपॉर्टेंट 1, इंपॉर्टेंट 2, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है. अब मान लीजिए 5 रीजन आ रहे हैं इसके लिए और दूसरे के लिए 4 ही रीजन आ रहे हैं, तो उसको पहले कीजिए एंड जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट थिंग. एंड व्हेन यू टेक योर डिसीजन कि मुझे ऑप्शन 1 के साथ जाना है, डोंट रिग्रेट कि ऑप्शन 2 क्यों नहीं, उसमें जाते तो शायद ऐसा हो जाता. नो, बी क्लियर विथ योर थॉट्स एंड विथ योर एक्शन. कंफ्यूज स्टेटस में रहने का ही नहीं है, फैंस में रहने का ही नहीं है. तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों को सामने रख लीजिए और खुद ही तोलिए. रीजंस मिल जाएंगे आपको आफ्टर सर्टेन टाइम. मे बी स्टार्ट में नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज जब करेंगे आपको रीजंस मिल जाएंगे, और जब रीजन मिल जाएंगे, चूज ए वन ऑप्शन एंड गो विद दैट. सिंपल. But there is one more element in that. Hello? Yeah. Yes. One more element in that, which is emotional. ये इमोशनल आ जाता है कहीं ना कहीं. तो यस. तो उसमें खाली एक चॉइस, ए चॉइस है, बी चॉइस करना, दैट इज ऑन बुक्स, इट इज वेरी क्लियर, इट कैन बी. Okay. Emotions. Can I say something, Amit, here? Who is this? Sagar sir. हाँ, मैं बोल सकता हूँ कुछ. Yes, why not? You can. सुहास जी, जैसा आपने बोला, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपने बोला कि मतलब कहीं इमोशंस बीच में आ जाते हैं और प्रायोरिटीज हम डिसाइड नहीं कर पाते, हमारे पास चॉइसेस हैं, तो हम क्या करें. तो उस केस में भी कहीं ना कहीं आपको ये तो लगेगा कि किस चीज के प्रति आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसके प्रति आपके इमोशंस थोड़े ज्यादा होंगे. उस बेसिस पे फिर आप
थोड़ा सा वर्कआउट करके कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है कि यू कैन आस्क फ्रॉम योर जिनी। वो टेक्निक्स वो अलग हैं, वो बाद में कभी अमित जी बताएंगे आपको। तो Yes, वो yes, भी है, definitely. क्योंकि जो आपका अंतर मन है वो सारी चीजें उसको पता है, उसको सब पता है आप क्या हो, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या हो। तो उससे जुड़ेंगे तो भी आप पा पाएंगे, थोड़ा सा मतलब रास्ता दिखेगा। एंड स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल सर, जहाँ पे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में पीपल आ जा रहे हैं और वहां पे इमोशन वाली बात आ जा रही है, सो बेस्ट वे जो आपका दिल बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है, मतलब लाइक मुझे ऑप्शन 1 के साथ जाने का है, सो वहां पे ऑप्शन बी के साथ जो मतलब 2 है उसके साथ आप क्लियर कर लीजिए। वहां पे अनकम्प्लीशन जो बोलते हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए, इन चीजें इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, रिग्रेट नहीं होता है। और जब वो चीज आप कर लेंगे और आपने जिस ऑप्शन को चुना उसके साथ आगे बढ़ जाइए, जब रिग्रेट नहीं रहेगी, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। आई होप यू गॉट द मैसेज सर। Yeah, I got it. Thank you, thank you. Somebody else was also telling something. I was trying to say something, Amit. Okay, who is this? Nagi Reddy. Yeah, Nagi Reddy sir, tell me. Just very two simple things. Yeah. You know, Arnold Schwarzenegger, the governor of one of the states. Okay, he's a bodybuilder and all that. Okay. He says in his motivational speech, never have plan B. Okay. The moment you have alternate, you are Correct. going to dilute the first one. Take a plan A and that is give you 100% beyond to it, and you're going to do it. The moment the mind tells you have plan B, you're going to dilute the first one. I do agree, failback mechanism, fail-safe mechanism, all that. But you got to be so much attached to your plan A and then do it. And then coming to another front of emotional attachment. As a trainer, I keep telling us at times emotions are required for some fight, for fear of flight or something, but there are many things that you have to be the master of emotions. So you convert that emotion, you truncate it, E in motion, energy in motion. When you take that, then you have a different ball game. Saying is easy, but this is how we make people practice it. This is what is practicable, it is followable, people are doing it. If you look at the history of all the persons who have evolved and successful, you find them, this is a signature what they adopt. Thank you, Amit. Thank you so much for your great insight, sir. Thank you. Yeah, anybody else? Amit, Yeah. also written, you know what your name means? Sorry, my name? Yeah, it means boundless, infinite. Okay, I scripted in the chat box. Okay. Oh, thank you so much, sir. Welcome. God bless. God bless. Thank you. Thank you, Santanu ji. Okay. So anybody else, if you want to ask, otherwise it's already 5:29. Maybe we can wait for another 1 minute. If otherwise we'll end the session here.